नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल्स के क्वेश्चन थे रिमेनिंग. Question है, choose the correct transfer function of the Bode plot shown below. As you can see from this graph, this is 48 dB, this is y1, this is 12 dB per octave, then there is a rise in slope, then here it is somewhere constant and then it again falls. We know that 6 dB per octave is equal to 20 dB per decade. So 12 dB per octave means it is 40 dB per decade. So 12 plus 6 is equal to 18 dB per octave is equal to how much? It is 60 dB per decade. Okay. So here you can see, as you can see from this graph, here it is, if I change the marker, right? Here it is, there is a rise in slope. So here it will be, there will be two zeros. Again, there will be one pole because here it is constant. So it is one pole. Here again it will be one pole, and here it is again minus 20 dB per decade, and it is again here will be one pole. So the transfer function will be Gs is equal to Ks square upon 1 plus s tau 1, 1 plus s tau 2, 1 plus s tau 3, right? Now here it is, as you can see from this graph, tau 1 is the tau 1 is the tau 1, tau 2, tau 3 are the corner frequencies. So as you can see from this graph, okay, I can write it as Ks square upon 1 plus s into 1 plus 0.2s into 1 plus 0.1s, right? Okay, because here two zeros, here one pole, one pole, one pole. So 1 plus s tau 1, 1 plus s tau 2, 1 plus s tau 3, and two zeros, so there will be s square. Now corner frequencies are at 1. This is tau 1, this is tau 2, and this is tau 3. Okay, so corner frequencies means what? Omega is equal to 1 upon tau. So omega 2 is 1 upon tau 2. So 1 upon 5 means 0.2. So it is 0.2. Tau 3 is 1 upon omega 3. That means 1 upon 10 is equal to 0.1, right? And tau 1 is 1 upon omega 1. That is it is 1 only. So at lower frequencies, what will happen? At lower frequencies, it will be 20 log k plus, here you can write it as, okay, let me show you in the next page. Okay, uh, here it is y1, it is 48 dB. Okay, now it is okay. Now as you can see here, 20 log k plus 40 log omega, it is 48 dB. I have told you this is twice 0. There is one pole, there is also one pole, and there is also one pole. 20 log k plus 40 log omega. Finding y1. अगर हमें y1 निकालना है तो हमें पता है कि slope is equal to y2 minus y1 upon log of x2 minus log of x1. So we know slope. You know how much is the slope there? Okay, here it was 40 dB per decade. It is minus 20 dB per decade, right? So you can see from this graph here, it is 48 dB, it is the magnitude, right? So it will be y2, right? And then log of x2 means this is x2, this is x1, log x2 minus log x1, and then it is 40 log omega. Okay, here it is 6 dB per octave, it is 12 dB per octave, right? Here what it is that means 20 dB and it is 40 dB. Okay, and it is here minus 20 dB per octave per decade. So here it will be 20 log k. If the we have to find the value of the slope. Okay, so see, this is for y2 minus y1 upon log of x2 minus x1. Okay, and this will be equal to 20. स्लोप अगर हमें चाहिए, ठीक है, 20 यहाँ से अगर आप इसमें देखोगे, ठीक है,
अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखोगे तो 20 तो होगा ये, क्योंकि ये 20 है और ये 40 है, तो यानी कि -20 + 40 विल बी रिजल्टेंट विल बी 20। तब आप यहाँ पे देखिए आपका आंसर कितना आएगा, इट विल बी, ये हो जाएगा 20 = 48 - y1 अपॉन log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ देखो अब इधर कितना हो जाएगा, 20 log ऑफ 5 माइनस 0 = 48। ठीक है, 48 माइनस y1। अब आप इसकी वैल्यू निकालिए तो कितना होगा, if you want to calculate its value, it will be 48 minus y1, and log 5 will be log 10 minus log 2. Okay, so log base 10 10 is 1 minus 0.3 something is 0.7, so 0.7 it will be 14. Okay, now find the value of so y1 is equal to how much, 48 minus 14, so it will be 34. Okay, at omega equal to 1, here it was 1. Okay, so at omega is equal to 1, 20 log base 10 k। यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे ये जो पूरा था आपका, यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या था, इधर था आपका 12 dB पर ऑक्टेव, इधर कितना था इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट था आपका 6 dB पर डिकेड, सॉरी ऑक्टेव। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने लिखाया आपको 20 log base 10 k एंड प्लस 40 log ओमेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो भी थी इधर, ठीक है, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 40 log ओमेगा एंड प्लस 20 log k। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू 40 log ओमेगा इज इक्वल टू दिस विल बी 34। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है ना, ये देखिए ये वैल्यू थी y1 की, तो यहाँ पे 12 dB पर डिकेड का मतलब क्या हुआ था, 40, इट विल बी 40 log ओमेगा प्लस इधर कितना था 20। आप एक क्वेश्चन देखिए पहले, ये जो था हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें ये y1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको मार्कर से चेंज करूं तो इसको पहले भी जगह नहीं है ना, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, देखिए हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं, हमें इस पॉइंट पे y1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट पे 6 dB पर ऑक्टेव मतलब 20, तो यहाँ पे 20 log k एंड प्लस ये वैल्यू जो इधर जा रही है ये 40 थी। ठीक है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू कितनी है, ये 40 है, ये 20 है, तो माइनस प्लस 40 माइनस 20 यानी कि 20 हो गया, तो 20 log k प्लस 40 log ओमेगा। ठीक है, एट ओमेगा इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा सॉल्व करने के बाद log of k एंड प्लस 40 log 1 इज इक्वल टू 34, 20 हो गया 1.0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा log k इज इक्वल टू 34/20, तो k इज इक्वल टू 10 to the power 34/20, तो इसकी वैल्यू 50.118 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, चेक कीजिए, 50.118 एस स्क्वायर बाई दिस मच। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन ओपन लूप system is given as this much. The next plot of the system is shown as this much. Which of the following statements is correct? देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप देखिए कि नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है n इज इक्वल टू p माइनस n। n क्या होता है, नंबर ऑफ encirclements of -1 plus j0 point by Nyquist contour in an anti-clockwise डायरेक्शन। P क्या होता है आपका, ओपन लूप RHS R होल्स। Z क्या होता है, क्लोज लूप
RHP zeros, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन में जब हम करेंगे 0 लेस देन k लेस देन 1, तो वी कैन सी देयर इज नो इंसर्कलमेंट। यहाँ मान लीजिए 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो देयर इज नो इंसर्कलमेंट, ठीक है। अब ऑफ -1 प्लस j0 पॉइंट बाय नाइक्विस्ट कॉन्टूर, तो n इज इक्वल टू 0 होगा। जब इंसर्कलमेंट नहीं होते तो n 0 होता है। टू गेट द नंबर ऑफ RHP पोल्स ऑफ गिवन ट्रांसफर फंक्शन राउथ हार्वर्ड टेबल बना सकते हैं। s क्यूब s स्क्वायर s टू द पावर 1 s टू द पावर 0। अब s क्यूब के कितने कोफिशिएंट्स हैं देखिए, 1 एंड 2। नहीं, हमें इसमें वो देखना पड़ेगा ना, 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0। अब ये वाला भी उधर भी देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं ना, वैसे 1 प्लस GS HS इज इक्वल टू 0। हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या है, 1 प्लस, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है ये वाला, देखिए ये है 10k ऑफ s प्लस 2 बाय s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस b। हम इसको लिख लेते हैं 10k ऑफ s प्लस 2, 10k ऑफ s प्लस 2 अपॉन s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस b। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस b इजी हो जाएगा। s क्यूब s स्क्वायर s टू द पावर 1 s टू द पावर 0, s क्यूब 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इधर s कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस 10k एंड देन p प्लस 20k, यही होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ना, s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर 2s 2 प्लस 10k ऑफ s हो जाएगा, उधर हो जाएगा 1 मिनट p प्लस 20k, यहाँ पे 1 और 3 s क्यूब 1 और 2 हो गया 2s प्लस 10k, ठीक है। s स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 3, एंड इधर s स्क्वायर के केस में हम कैसे निकालें, इधर कहीं s स्क्वायर है, s क्यूब, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, s क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2s प्लस b प्लस 10k ऑफ s प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा पूरा कोएफिशिएंट इसका, ये निकलेगा 1 मिनट, ये निकलेगा कुछ s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस b प्लस 10sk प्लस 20k, तो 2 प्लस 10k इसका s हो जाएगा b प्लस 20k, तो ये 1 और 2 प्लस जो भी था इधर 2 प्लस 10k आना चाहिए, और 3 हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, ठीक है, और 3 और इधर s स्क्वायर है तो इधर p प्लस 20k, ऐसे होना चाहिए कायदे से, क्योंकि s क्यूब हो गया, s क्यूब फिर दिस 3s स्क्वायर फिर दिस। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 30k माइनस p माइनस 20k अपॉन 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा कुछ 6 माइनस p प्लस 10k अपॉन 3, और फिर ये वैल्यू तो 0 हो गई, एंड s नॉट टू द पावर 0 कितना हो जाएगा p। तो वी कैन सी जो नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कंडीशन देखनी है, जैसे ये था क्वेश्चन, तो इसमें हम देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसे इसने पूछा है, if 0 less than p less than 6, तो number of poles in RHS is 0 and number of poles in LHS is 3, अगर देखें तो, ठीक है। तो यानी कि इस केस में जो z है वो n माइनस p बराबर 0 है, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा, देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, फॉर p इक्वल टू 6 द नंबर ऑफ रूट्स इन RHP ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज 6, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ p कैन बी नेगेटिव, p की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो यानी कि सिस्टम जो हो जाएगा वो अनस्टेबल भी होगा, एंड देयर इज अ साइन चेंज, ये साइन चेंज होता है एज देयर इज अ
साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम ऑफ राउट टेबल. ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है एंड ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है बिकॉज द स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पी एज क्लियर फ्रॉम द राउट टेबल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला. ये आपको दिया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है इसमें. आप इसमें देखिए ये ट्रांसफर फंक्शन होता है ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. वो होता है ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जाए ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी अंडर रूट वन माइनस ट्वाइस जाए स्क्वायर. एम नॉट क्या है? रेजोनेंट पीक है. तो वन अपॉन ट्वाइस जाए अंडर रूट वन माइनस जाए स्क्वायर. जाए लेस देन इक्वल टू वन बाय रूट टू. कैलकुलेशन जो हो जाएगी यहाँ पे सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू यहाँ पे 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कितना ओमेगा एन 2 हो जाएगा यानी कि प्लस माइनस 2 रेडियन पर सेकेंड. ट्वाइस झाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 हो गया. तो झाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप देख सकते हो 1 अपॉन ट्वाइस ओमेगा यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू 2 यानी कि 1 अपॉन 4. ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस ट्वाइस झाई स्क्वायर 2 अंडर रूट 1 माइनस 2 इंटू 1 बाई 4 का होल स्क्वायर. 2 1 माइनस 1 बाई 8 इज इक्वल टू एम नॉट कितना हो जाएगा रेजोनेंट पीक 1 अपॉन ट्वाइस झाई अंडर रूट 1 माइनस झाई स्क्वायर. तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर. झाई की वैल्यू यही थी ना 1 बाई 4. ये वैल्यू हो जाएगी 2.065. तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा दिस मच. ठीक है. इसको डी में तो निकाल ही सकते हो ना 20 लॉग बेस 10 एमआर. देखना चेक करिए आप ये कितना आएगा. तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके. हम कराएंगे बॉडी प्लॉट के और क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच.